India Today impact. India Today's mission Iraq that rocked Parliament on the 8th day of the monsoon session. External Affairs Minister Sushma Swaraj made a statement in Parliament after being prevented from doing so multiple times by the opposition. Finally, just after noon, Sushma Swaraj was able to make that statement. It was a fairly substantive statement where she took on several of the points being raised by the opposition. She specifically addressed the issues raised by India Today's Mission Iraq and concluded by saying that till the time she didn't have substantive and concrete evidence of the status of these Indians, till the time she knew for sure whether they were dead or alive, she would not declare them dead. External Affairs Minister Sushma Swaraj there making a passionate and emphatic statement. Has she been able to silence the opposition? Joining us now is India Today's Associate Editor Poulomi Saha right outside Parliament. With us also this afternoon our Foreign Affairs Editor Geeta Mohan. I want to go across to Poulomi first. What's the response that you're picking up in Parliament, Poulomi? Are opposition MPs convinced? Because Sushma Swaraj says, and she referred extensively to that India Today report, she's accepting that Badush prison has been taken down, but she says that by itself is not evidence to suggest that these Indians are dead. Absolutely, and that is not something that India Today was trying to suggest as well. We were only trying to say that the government, the information that the government was trying to pass on to the families of the missing Indians in Iraq was inaccurate at the moment, and that is what they needed to update themselves about. And that is something that, of course, the members of Parliament from the opposition who've been raising this issue, including Pratap Singh Bajwa, including Bhagwant Mann, are convinced about at the moment that yes, the government has come forth with some amount of updated information where they are throwing more light on what exactly they are privy to. But yes, this is not conclusive evidence or information for that matter as to what exactly has happened since 2014 when these 39 missing Indians were actually captured Stay with me. by I want the to go ISIS. across live and across to Harjeet Masih. Harjeet Masih is the sole survivor from this episode. He's joining us on this broadcast. Harjeet Masih ji, वेलकम टू इंडिया टुडे। आपने सुना सुषमा स्वराज जी का बयान। उन्होंने कहा कि जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, ठोस सबूत नहीं मिल जाता कि ये हिंदुस्तानी मारे गए हैं, तब तक ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। आपको लगता है सही स्ट्रेटजी है ये सुषमा जी की? सर मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, जो हुआ है मेरे साथ साथ मैं तो वही बोलता आ रहा हूँ, अभी तक वही बोल के आ रहा हूँ कि जो मैंने बोला है वही हुआ है। सर उल्टा मुझसे इल्जाम आ रहा है। सर उल्टा मुझे उन लोगों ने सजा दिलाई है। सच बोलने के साथ सजा मिल रही है मुझे अब तक। नहीं, क्या सजा मिल रही है? आप कह रहे हैं कि आपको पनिशमेंट मिल रही है। क्या पनिशमेंट मिल रही है आपको? सर लोगों ने पर्चा करवा दिया मुझसे और मेरा सारा कसूर निकाल दिया। एजेंट शो करवा दिया मुझे। क्या करवा दिया? मैं समझ नहीं पाया। सर मुझे एजेंट शो करवा दिया लोगों ने। अच्छा, हाँ जी सर। नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में कहा पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि हरजीत मसीह कहता है कि ये मर गए, लेकिन एक बहन ऐसी है जो कहती है कि 17 तारीख को फोन आया। वो कहती है कि अगर वो मर गए थे तो फोन कैसे कर रहे थे? तो आपके स्टेटमेंट पर ही सवाल खड़ा कर रही है। सर उनको पूछो उसके बाद क्यों नहीं फोन आया। 17 तारीख को फोन आया, उसके बाद कोई फोन आया उनको? सर कोई किसी का कोई फोन नहीं आया। जब उन लोगों ने हमें किडनैप किया उसी तुरंत उन लोगों ने हमें से फोन छीन लिया, सभी लोगों के। तो फोन कहाँ से करेंगे वो लोग? नहीं, तो ये जो मंजिंदर की बहन है ये तो कहती है कि फोन आया 17 तारीख को। सर मुझे नहीं पता सर आया कि नहीं आया। सर उनको बोलो हाँ प्रूफ दिखाओ फोन आया तो, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ हमें, उनकी कॉल डिटेल निकालो और हमें सुनाओ कि हाँ उससे आपने बात की है। तो आप अभी भी अपने बयान पे कायम हो कि आपने देखा इन इंडियंस को अपने सामने मारे जाते हुए? सर आप बोलो अब कितना सच बोल इंडिया में रहकर, कितना सच बोलूं? एक बार बोलो सर। सर बार मैं यही दुनिया को सुनाना चाहता हूं, इंडिया में कोई भी सच मत बोले, झूठ बोलो और जो भी सरकार देती झूठ बोल के वही सरकार से ले लो। कोई भी सच मत बोलो सरकार से, झूठ बोलो। जितने भी लोग हैं ना, मैं सभी को यही कहता हूँ कि सब लोग झूठ बोलो, सच कोई ना बोले। सर मैंने सच बोला कि हाँ सभी लोगों को मार दिया है। अभी तक वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी आंखों के सामने उन 39 भारतीयों को मार दिया गया है। नहीं, पर फिर वो पूछते कि अगर बाकी सब मर गए तो आप कैसे बच गए? सर फिर वही सर मुझे क्या पता मैं कैसे बच गया। था उनके पास ही, मैं उधर पड़ा था, उनके साथ ही पड़ा था। मुझे गोली नहीं लगी, मैं नहीं जानता कैसे नहीं लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बट जो मेरी आंखों के सामने हुआ है सर, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी तक मैं वही बोल रहा हूँ कि उन लोगों को मेरे सामने ही मार दिया गया है। चलो मैं मानता हूँ सरकार कह रही है कि हाँ वो जिंदा है, सर मैं कहता हूँ मैं झूठा बढ़ जाऊँ, वो लोग जिंदा है तो जिंदा लेके आए सरकार इधर, फिर मैं देखूंगा, फिर उन लोगों ने पूछना भी हाँ हरजीत गलत है या कौन गलत है। जब 39 लोग आएंगे नहीं तो किससे आप सवाल करोगे, कौन आएगा वापस इधर? कोई नहीं आएगा। आपके हिसाब से सुषमा जी को क्या करना चाहिए था हरजीत? सर मैं कुछ नहीं बोल सकता सर, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मेरे सामने हुआ है सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ। आगे सर सरकार है, जो उन्होंने करना वही करेंगे सर। मैं क्योंकि इराक के जो विदेश मंत्री थे हाल में आए, उन्होंने भी यही कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है ना जिंदा होने की ना मारे जाने की। सर उन लोगों ने सर अपने देश के लड़कों को नहीं छोड़ा, उनको मार दिया है, तो हमको कहाँ छोड़ेंगे वो लोग? सर मेरी आंखों के सामने सभी को मार दिया गया है। कैसे आप पकड़े कैसे गए आप लोग सब? हाँ सर, कंपनी में काम कर रहे थे ना, 3-4 दिन से तो काम बंद हो गया उधर। हाँ सर, काम बंद हो गया उधर। चलो मतलब साहब पहले ही आपको बताया कि मतलब हमारी कंपनी में आए थे, उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है, मतलब 2-3 दिन रखा है, हमारी कंपनी में आके हमें किडनैप किया उन लोगों ने। अच्छा, तो फिर पकड़े गए तो कितनी देर? आपने कहा कि ये इन्होंने मार दिया सबको गोली, कितनी देर आप लोगों को कस्टडी में रखा, बंधक बना के रखा? सर हाँ सर, शायद 2-3 दिन रखा होगा उन लोगों ने। कितने दिन? 2-3 दिन। और उन 2-3 दिन में आप लोग कहाँ पे थे? सर पहले तो एक मतलब कि बेसमेंट बनी हुई थी सर, वहीं कोई बाजार था, वहाँ बेसमेंट बनी हुई थी, वहाँ रखा है पहले दिन लोगों ने। और अगले 2 दिन रखा अनजस्टेड एरिया था कोई सर, कोई पता नहीं कौन सी जगह थी, कौन नहीं वो पता नहीं मुझे, अनजस्टेड एरिया था, वहाँ रखा उन लोगों ने हमें। अच्छा, फिर ये कहाँ पे था? ये मोसुल शहर में था? सर हाँ, शायद मोसुल शहर में था, शायद आसपास में होगा कहीं उधर। और वहाँ सर दो दिन रखा उन लोगों ने वहाँ में। 2 दिन के बाद पता नहीं लोगों को क्या हुआ, बोले जो इंडियन है एक साइड हो जाओ, जो बांग्लादेशी एक साइड हो जाओ, पहले इंडिया वालों को छोड़ के हम आएंगे और बाद में जो बांग्लादेशी उनको छोड़ के आएंगे। सर हमें क्या पता, हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं वो। हम लोग की एक बक्सर बंद गड्डी आई, उसमें हम लोगों को बंद किया, 40 लोगों को। और वहाँ एक पहाड़ी इलाका था सर, कोई भी नहीं था उधर बस, और बहुत लाशें पड़ी हुई थी उधर। नहीं, आपने तो पहाड़ी इलाके की बात कही। हाँ? हमारे साथ हरदीप पुरी थे, जाने माने डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि उस इलाके के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ गए भी हैं, कि वहाँ पे ऐसा कोई पहाड़ी इलाका है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सब रेगिस्तान है, पहाड़ तो वहाँ है ही नहीं। मतलब सर ऊंचा नीचा था ना, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीवा। सर मैं तो पहाड़ी इलाका बोलूँ, मुझे सर पता थोड़ी क्या रेगिस्तान होता है, क्या होता है। सर हम क्या पहाड़ में थोड़ी रहते हैं, इधर हमारे तो गाँव है सिंपल सा। मैं तो यही बोलूंगा, थोड़ा ऊंचा उसको पहाड़ी बोलूंगा ना मैं। ठीक है सर। तो ये मोसुल से कितना दूर था? कितनी देर आप गाड़ी में थे? सर कम से कम आधा घंटा लगा होगा। अच्छा, मोसुल से आधा घंटा दूर ये कहीं पे लेके गए आपको? हाँ सर हाँ। अच्छा, फिर? तो सर जब वहाँ हम लोग को खड़ा किया हम लोगों ने, उस टाइम नहीं हमें पता भी हाँ उधर कोई और ही मरा है या नहीं मरा। हम सोचा बस हमें अकेले हैं, 39-40 आदमी हैं, हमें को मार। बहुत सर उनको बोला भी हमें छोड़ दो, जो आप बोलो हम करेंगे, मुसलमान बन जाएंगे हम, जो कहोगे हमारी जान बख्श दो। और उन लोगों ने मतलब हमारी बात कोई नहीं सुनी। नीचे पहले बोला भी अपने फ़ोन अपने पैसे दो हमें, और पैसे और फ़ोन छीन लिया और नीचे बिठा दिया सर। तो आंखें बंद थी कि पट्टी थी कि आंखें पे पट्टी नहीं? सर कुछ नहीं किया उन लोगों ने, बस ऐसे जैसे हैं हम वैसे ही नीचे बिठा दिया। अच्छा, फिर? हाँ सर, बाद में लोगों ने पीछे से शूट कर दिया। जब शूट किया कितनी देर बैठा के रखा? सर सिर्फ 1-2 मतलब कि पहले तो उन लोगों ने जो फोन छीना, मतलब कि 10 मिनट लगे वहाँ फोन छीनते हुए, पैसे निकालते हुए, तलाशी करते हुए, बाद 10-15 मिनट लगे उधर। अच्छा, वो लोगों ने सबको छीन के नीचे बिठा दिया। ठीक है, तो सब जब बिठाया, जब लोगों ने एक तरफ से गोली शुरू की ना, मतलब वैसे गोली शुरू करनी थी, तो मैं फटा से नीचे लेट गया, नीचे जमीन पे लेट गया नीचे। सर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मुझे यह है कि यही बात नहीं भी गोली चल रही है। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, अपनी आंखों से। सर उतना प्यार उनके घर वाले उनको करते होंगे इतना मैं उनको अभी तक सर याद करता हूँ उनको। अच्छा, हाँ सर, उनकी आत्मा के लिए अभी तक दुआ मांगता हूँ मैं।
अपनी आंखों सर मेरे देखे मैं। तो कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला कभी आपके हिसाब से? सर 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए सर। आप ना मुझे मार के 10 दिन रख दो इधर, 10 दिन में मेरी मुझसे बदबू आएगी। 3 साल है, 3 साल से सर कुछ भी नहीं मिल सकता वहाँ। आदमी मर जाए ना, सांस निकले, आदमी मरा हुआ हो सर, 10 दिन की 2 दिन में बदबू आने लगेगी आदमी से। गलत सही है सर। 3 साल बीत चुके हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? उनकी तो हड्डी भी नहीं मिलेगी आपको वहाँ। चलिए हरजीत मसीह साहब जुड़े आप हमारे साथ, शुक्रिया आपका। हमारी उम्मीद यह है कि कहीं ना कहीं ये जो रहस्य है वो सॉल्व होगा। आई वांट टू गो अक्रॉस वेरी क्विकली टू पार्लियामेंट। Randeep Singh Surjewala is speaking to India today. At this time, let's listen to what the Congress official spokesperson has to say about Sushma Swaraj's response. I have been joined by Congress's Congress Party's Communication Department Head, Mr. Randeep Singh Surjewala. Mr. Surjewala, sir, today External Affairs Minister Sushma Swaraj gave a detailed reply as far as the missing Indians in Iraq are concerned. Is anybody in the country satisfied with the reply given by Shrimati Sushma Swaraj? Instead of blaming a particular news channel, India Today, for their fair and incisive news reporting, she should have owned accountability for her previous statement that it was wrong, that for reasons that she would or would not like to state, that what she said on the floor of the parliament regarding Indians held in Mosul, Iraq being alive was incorrect. She should have admitted her mistake and she should have said we will now do all within our means. Instead of blaming news channels, instead of blaming individuals, and instead of finding fault with everything but for her own self, we expected a mature leader like Shrimati Sushma Swaraj to tell the facts from the core of our heart as also as they happened. Is it not true that both Mrs. Swaraj as also her Minister of State said that Indians were lodged in an Iraqi jail, while the visiting External Affairs Minister of Iraq denied it? When India Today and other news channels reached there, the jail itself was not found on the spot. Where are those Indians is the only question that India needs answer to. Are they alive? Is Government of India doing something about their safety as also their safe return back to India? We are one with the government, but do not mislead, answer the relevant questions. Right, but she is saying that now through the Iraqi authorities, they've asked for the list of these prisoners who were there in Badoosh jail till 2016. Now the entire area of Mosul was under ISIS. So this, what to make of this statement that she has given? We will only appeal to government that there are no political one-upmanship on the issue. We commend the news channels who in these difficult circumstances and challenging ones travelled all the way and exposed the fact that the jail itself was in rubbles. Where have the Indians gone? Are they safe? What will government do to ensure safe passage? Asking for lists is okay, that may be a one small step. But what about safety and safe return of these Indians? That's a question that Prime Minister and External Affairs Minister needs to assure the nation about. Right, well that was Mr. Surjewala talking to us with Virginia Shakil. This is Supriya Bharadwaj for India Today in Delhi. That's the Congress official spokesperson saying that Sushma shouldn't have in the first instance been making assurances if she wasn't certain. Remember, the External Affairs Minister this afternoon said that henceforth she will not make assurances to the families unless she has concrete evidence. The question the opposition naturally asks is, why were these assurances being made in the absence of concrete evidence earlier? Remember, India Today has been setting the national news agenda all this week.